guys, welcome back to our channel. Where is Niharika today? So this time, finally, if you have seen our previous video, taken Maun Vrat for 8 days. करने वालों की हर्ष हर्ष जय जय। Last 7 years. This is now his 8th Athai. Let's get into it. Hello guys, welcome back to our channel. Today there won't be any challenges, but I have something new, fun planned for you guys. Now you must be thinking, where is Niharika today? I will let you know about it, but let me tell you why I am vlogging today and why I am the only one in front of you. So today is the 8th day of Paryushan, which we call it as Savasari. It is the biggest day for us. Like if you have seen our previous video, mostly our last video, you must have known that we are Jain. So Paryushan is one of our biggest festival and today is the last day. So in this video, I am going to tell you everything about Paryushan, what goes behind the scene, what it's all about. Let's get into it. What is Paryushan? So I will tell you. It is basically for 8 days, and throughout these 8 days we seek forgiveness for whatever wrongful deeds we might have committed knowingly and unknowingly to anyone, from insect to a living being or non-living thing. We just seek forgiveness from God, and throughout these 8 days there are many restrictions. How we do it is, during these 8 days we can't eat any outside food, no leafy vegetables allowed, no root vegetables including onion, potato, no ginger, no garlic, no beetroot, anything. So these 8 days we have to complete our meal before sunset. All household chores need to be completed before sunset. And during these 8 days we drink only boiled water. After that our mother and grandmother do Pratikraman. Now what is Pratikraman? My mother will explain it to you in the next clip. प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? प्रतिक्रमण पर्युषण पर्व के 8 ही दिन किया जाता है। संध्या कालीन में 1 घंटे के लिए किया जाता है, लेकिन संवत्सरी के दिन, लास्ट दिन जो 8वां दिन होता है संवत्सरी का, उस दिन ज्यादा टाइम का होता है, क्योंकि उस दिन हमारा बड़ा प्रतिक्रमण होता है और उस टाइम पे हम सब जीवों से और सबसे क्षमा याचना करने के लिए हम वो बड़ा प्रतिक्रमण किया जाता है, वो संवत्सरी का होता है। Furthermore, during these 8 days, we do some sort of tapasya in our family. My father is doing Athai. Now, Athai basically means throughout these 8 days, you can't eat anything, you can't consume anything. You can only drink water, but it needs to be boiled, and you can drink it only before sunset. After that, you can't drink or consume anything. You can't consume any foods or nothing. It's proper fast. My father has been doing Athai for now 7 years. This is his 8th Athai, which is incredible. So along with my dad, my mother has been doing Ekashna. Now Ekashna is basically, you can have one meal in a day. Either it can be in the morning or in the afternoon. My mother usually takes her meal in the afternoon, but once you start the meal, it needs to be completed. You cannot get up. Once you get up, it would be considered as completed, and you cannot have anything after that. This meal should be completed before sunset. Also, my mother has been doing this Ekashna for 7 years now. This is her 8th year, which is superb. So this time, finally I did Bela. So I'm not usually a religious person. Like I do what other family members do in the family, but I'm like, हाँ होगा तो कर लेंगे, नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दो. But I was like, ये क्वारंटाइन है, अगर इसमें नहीं किया तो क्या किया, इस बार तो करना है कुछ भी करके. So I was very determined कि इस बार करके रहेंगे, and I did it finally 2 days continuously.
So now you must be thinking, what is Niharika doing? Like, my father is doing Athai, my mother is doing Ekashna, I have completed Bela, and now what's up with Niharika? So she has done the most difficult task ever. Like, she has taken Maun Vrat for 8 days. She can't speak anything. Like, वो सुबह उठती है, उसका बड़बड़ शुरू हो जाता है, रात को सोती है बड़बड़ करती है, 24 घंटे बड़बड़ चालू रहता है उसका. एंड शी इज डूइंग मौन व्रत इज लाइक समथिंग एल्स. एवरी डे इतना उकसाते थे कि कुछ तो बोल दे, बट शी वॉज वेरी डिटर्मिन्ड. आई शुड से दैट, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. एक शब्द नहीं बोला उसने, उसको इतना उकसाने के बाद भी. और she is going very strong now this day, and for that reason she is not there, and I am the one speaking to you all. Today is my Upvas and also my sister's Upvas. She along with Maun Vrat, so which is a very very big deal. So yeah, I will take you around and enjoy. अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया. भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया पर्युषण आया. जैनों का त्योहार आया. जैनों का त्योहार आया. जैनों का त्योहार आया. हो जैनों का त्योहार आया. हो जैनों का त्योहार आया. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा. माता जाकी पार्वती पिता महादेवा. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा. माता जाकी पार्वती पिता महादेवा. एक दंत दयावंत चार भुजाधारी. मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी. एक दंत दयावंत चार भुजाधारी. मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी. पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा. लड्डूबन का भोग लगे संत करे सेवा. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा. माता जाकी पार्वती पिता महादेवा. अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया. बांझन को गर्भ देत निर्धन को माया. अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया. बांझन को गर्भ देत निर्धन. नमो स्वामी चक्करेणी कल्याणं मंगलं देव्यं सेव्यमजन्मते नंदामि. ये सब सामग्री जो है ये पाड़ने के लिए है. इसमें सबसे पहले
उपवास करने वाले को सबसे पहले पापड़ खिलाते हैं कच्चा, दांतों में अच्छे से चबा चबा के खाते हैं जिससे कि दांत में स्मेल वगैरह नहीं रहे, क्योंकि हमारे 8 दिन तक न तो ब्रश करते हैं न कुछ करते हैं, उस वजह से फिर मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। उस वजह से पहले पापड़ खिलाया जाता है कच्चा पापड़ सब दांतों में चबा चबा के खाना होता है। फिर उसके बाद केर का पानी पिलाया जाता है। ये जंगल में होते हैं और इसका अचार वगैरह सब बनता है, सब्जी भी बनती है, लेकिन स्पेशली ये पेट के जितने भी इतने दिन तक जो पेट में गंदगी जमा होती है उसको साफ करने के लिए पहले केर का पानी पिलाया जाता है। उसके बाद उकाली पिलाई जाती है। ये सब काली मिर्ची, लौंग, जायफल, जावंत्री, ये सिरमन, ये सब का ये पाउडर होता है जिसको पानी में डाल के अच्छा उकाला बनाते हैं, जैसे उकाला बोल सकते हैं अपने, तो वो होता है। ये जड़ी बूटी जैसे होता है। और ये केर है जो बताया था, इसका पानी, इसको उबाल के जो ये पानी निकलता है वो पिलाते हैं। और ये केर का थोड़ा मसाला डाल के दही के अंदर छोका लगाते हैं। ये केर है। ये हलवा है बादाम का, जो थोड़ा ताकत के हिसाब से इसको सबसे लास्ट में खिलाया जाता है। ये मूंग है, ये ताकतवर रहता है क्योंकि 8 दिन में कमजोरी आ जाती है, उस वजह से उपवास करने वाले को मूंग खिलाया जाता है। ये सब पाड़ने का है। तपस्या करने वालों की हर्ष हर्ष जय जय। तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। 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 जय हर्ष 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 हर्ष। तपस्या करने वालों को 1 2 3 4 जैन धर्म का जय जयकार। 5 6 7 8 जैन धर्म का ठाठ बाठ। 9 10 11 12 जैन धर्म का भजन नगारा। 13 14 15 16 जैन धर्म का बच्चा बोल। 17 18 19 20 जैन धर्म की 20 21 22 23 24 जैन धर्म के तीर्थंकर 24 महावीर स्वामी की जय। तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। खूब पूर्ण। तपसी के गले हार है जी हार है। फूलों की बहार है। हार है जी हार है। फूलों की बहार है। 900 लड़ियों का तपसी के गले हार है। 900 लड़ियों का तपसी के गले हार है। गले तपसी के ना सोए
मम्मी का पार्लर इन्होंने तर्शना किया और हमारे घर पे कुछ भी कोई भी करे सबको पालना करना पड़ता है, इट्स मैंडेटरी। तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। हर्ष हर्ष जय जय हर्ष हर्ष जय जय। सेवा करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। हर्ष हर्ष। जय जय। आज के आनंद की जय। मिच्छामि दुक्कडम।